تو بڑے اچھے اچھے بیانات ہیں ایران کی طرف سے بھی، اور ایکزیوز نے ہمیں بتا دیا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ مزید حملے نہیں کر رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی خود بتائیں گے کہ وہ نیکسٹ کیا کر رہے ہیں. تو ویسے کتنا ٹرسٹ وردی سمجھیں ہم امریکہ کو اس معاملے میں؟ جی پہلے تو مدعو کرنے پر مشکور اور صبح بخیر. ٹرسٹ وردی کتنا سمجھیں، دنیا ہی ٹرسٹ نہیں کرتی ہے تو ایران کیا کرے گا اور اس خطے کے افراد کیا کریں گے. ٹرسٹ کا تو یہ عالم ہے کہ امریکہ نے گارنٹی دی ہوئی تھی تمام خلیجی ممالک کو کہ وہ ان پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آئے گی، ان کی بھی تباہی اور بربادی. اور اس کے علاوہ آپ ذکر کر رہی تھیں اپنے اس میں انٹرو میں جو تھاڈ اور پیٹریاٹ کے بارے میں، تو وہ آپ اندازہ کریں کہ وہ آئرن ڈوم کہاں چلا گیا، کیا ہو گیا کہ وہ میزائل ایران کے چیرتے ہوئے وہ جا کے اپنے اہداف پہ چلے جاتے ہیں. اور آج ہی کی تو بات ہے جو بیان گزشتہ شب دیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے، حسین مجتبی ان کا نام ہے ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے کوئی 18 کے قریب جہاز اس بیسس پہ جو تھے، اس میں ریفیولنگ بھی ہیں، لڑاکا بھی ہیں، باقی بھی ہیں، ان کو تباہ کر دیا. ظاہر میزائل سے کھڑے ہوئے تھے وہاں، وہ اس میں بنکرز اپنے جو ہینگرز تھے. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں 200 کیجولٹی، چلیں 200 نہیں اگر 20 بھی ہوئی تو امریکہ کے لیے بہت زیادہ بہت بڑی بات ہے. اب کچھ مثبت باتیں. مثبت بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ ڈپلومیسی کا دروازہ کھولا ہے. تو کیا یہ ایسی مفت میں کھول دیا ہے؟ یہ جو اس وقت رسا کشی چل رہی ہے اس میں پس پردہ چائنا اور رشیا بھی ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی سٹیج پر یہ خبریں لیک ہو رہی ہیں کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ تہذیب کو میں تباہ کر دوں گا اور ایران کا ایک آدمی بھی نہیں بچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوک، ٹیکٹیکل نیوک. رشیا کے طرف سے خبر لیک ہوئی ہے کہ رشیا نے کہا ہے کہ اگر ٹیکٹیکل نیوک ہوا تو ہم اپنے ڈاکٹرین کو ایکٹیویٹ کر دیں گے نیوک کو. تو اس سے پوری دنیا سہم گئی ہے جن کو اس بات کے بارے میں معلومات ہوئی ہے. تو لہٰذا ایک تو وہ، کیونکہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہزیمت ہو رہی تھی، ایک سپر پاور آپ اندازہ کریں، کوئی مقابلہ ہی نہیں. ایران کی آرمی 23 بلین صرف اس پہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور امریکہ 996 اور اب 1.5 ٹریلین جو ہے وہ خرچ کریں گے اگلے سال سے. اب تک 996 بلین خرچ کرتے ہیں اور 100 بلین کے قریب دوبارہ انہوں نے درخواست کی ہوئی ہے دینے کی. تو کہاں اتنی بڑی آرمی، سپر پاور، 800 بیسز اس خطے میں، 27 بیسز، اور اس خطے میں 50,000 افواج امریکہ کی. تو عظمت کی بات تو ہے ایک سپر پاور کے لیے کہ ایسا ملک جو مڈل پاور ملک بھی بڑی مشکل سے ہے، اس نے ناکوں چنے چبا دیے. تو جب اتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم گفتگو کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے پوری دنیا میں اس کی ایک پریشر، ایک پوری ہجانیت پیدا ہو گئی ہے، معاشی ہجانیت کی میں بات کر رہا ہوں، ایک پریشر پیدا ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے بھی امریکہ میں تو پریشر پڑ رہا ہے دنیا کا، لیکن وہاں کی عوام کا بھی پریشر پڑ رہا ہے جمیل صاحب. میں اس بات کو ادھر چھوڑتے ہوئے، جی کریکٹ اس بات کو ادھر چھوڑتے ہوئے، جی پلیز کمپلیٹ کر لیں. جی آپ سوال کر لیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثبت بات یہ ہے کہ یہ نیتن یاہو کو بلایا گیا ہے، وائٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں کوئی 4 دن کے بعد وہاں، اور اس سے پہلے کچھ مثبت اشارے دیے ہیں، کم از کم سمبولک. پہلے تو یہ پالٹ زول کو خالی کرنے کا لبنان میں. دوسرا یہ ہے کہ ISF جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، جس کو ابھی تک نہیں قبول کر رہا تھا اسرائیل کہ یلو لائن پہ ہم رہیں گے اور ہم نہیں آنے دیں گے غزہ میں، ان کو آنے کی اناؤنس کر دیا ہے، اجازت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس غزہ میں پہنچنا شروع ہو جائے گی. دوسری مثبت بات. تیسری مثبت بات اس کی یہ ہے کہ امریکہ کی منشا سے اس وقت تہران میں عمان کی ایک ٹیم موجود ہے جو کہ ہرمز کو کھولنے کے لیے اس کا جو ایک لائحہ عمل ہے وہ بنا رہی ہے، جس کا کہ ذکر کلاس 5 میں ہے، وہ 14 پوائنٹس میں. اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کلاس یعنی کہ یونائٹڈ نیشن لا آف سیز کا اطلاق نہیں ہوتا ایران پہ یا امریکہ پہ، انہوں نے ریٹیفائی نہیں کیا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور ہے 1958 کا کنونشن آن دا ٹیریٹوریل سی، آرٹیکل 26، اس کے تحت یہ چارجز الاؤ کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ایران کو، اور ایران کو سروس چارجز کے نام پر، جیسے ملیشیا ہو گیا، جیسے سنگاپور ہو گیا، اس قسم کے سروس چارجز کے بہانے
उसकी बात मानी जा रही है। आपको अगले 1-2 रोज में इसका इल्म हो ओके। जाएगा, मीडिएटर्स ने पहुंचा दिया है इस बात को। तो लिहाजा ये मस्बत चीजें हैं, और मस्बत चीजें इसलिए हैं कि रोबियो ने ये कह के देख लिया कि हम आंख के बदले सर लेंगे, और उससे पहले ईरान ने कहा था कि हम आंख के बदले आंख, तो आंख के बदले सर। तो उस पे ईरानी तो सर लेके अपने खड़े बैठे हुए अपने हथेली पर। और वो तो हम देख रहे थे कि 25 सालों से वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे, और वो तो उनका रिजॉल्व जो था सर, वो तो बिल्कुल एक आहनी दीवार की तरह हमें नजर आया। लेकिन मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ, आपने बड़ी मस्बत बातें गिनवाई, एक मस्बत बात ये भी है कि मुज़ाकरात की हवा फिर से चल पड़ी है, और डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में हम एक मस्बत चेंज भी देख रहे हैं। वो मुज़ाकरात की बात, मफाहमत की बात कहीं ना कहीं अब करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सर जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो अब फिर दोबारा से मुज़ाकरात की बात हो रही है कि जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं अपने जो उनका जो पेट्रियट्स का नुकसान हुआ है, जो उनका मिज़ल ज़ख़ीरा कम हुआ है, उसको रीस्टॉक रिचार्ज करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि एक्चुअली ये बात मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, दोबारा से दोनों फरीक मेज़ पे बैठेंगे? देखिए, ये मुज़ाकरात के लिए क्यों जा रही है, जिसका मैंने कुछ बयान तो कर दिया आपको, और साथ में ईरानियंस जो हैं वो अपनी एग्जिस्टेंशियल जंग लड़ रहे हैं। वो मैंने आपसे अब जिक्र कर रहा था ना जब आपके सवाल से पहले, और मैं इस पे आ जाता हूँ। तो उस पे सर के आंख के बदले सर, तो ईरान तो कह लीजिए इस मतमाए नज़र का मालिक है, और उसने साबित कर दिया ईरान, और ये बात दुनिया के सामने आया हो गई है कि सतूने दार पर रखते चलो सरों के चिराग, जहां तलक के सितम की स्याह रात चले। तो ईरानियन तो इस चीज के उसमें है, तो अब उनको कौन शिकस्त दे। इतनी सुपर पावर ने देख लिया, तो अब एक बीच वाला रास्ता निकाला है। अब आ जाते हैं कि किस जगह पर मीडिएटर्स ने इन 3 जगहों में से कोई भी इंतखाब करने। असल तो चीज ये है कि दोबारा, और फिर वाकई मसला उनका कम हो रहा था। अभी उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ने, जब मार्को अखबार में खबर आई हुई है, एक लाइन से डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस और मार्को रूबियो चलते हुए जा रही हैं वो उसकी तरफ, टॉक्स की तरफ, और उसमें उन्होंने बताया, उस ब्रीफिंग में जो बात आ गई है सामने अब मीडिया में, बात ये बताया है कि अब तो असला हमारे पास कम हो रहा है, सेंटकॉम का एमुनेशन जो है वो कम हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया, आप अंदाजा करें, फोर्ड जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, और उसको ऑर्डर दिया है कि भाई आप उसको ट्रांसफॉर्म करके मिलिट्री इंडस्ट्रीज की तरफ आप आ जाएं, जनरल मोटर्स और फोर्ड को। तो इतनी ज्यादा कमी हो रही है क्योंकि थॉट्स की एक लिमिटेड कैपेसिटी है बनाने की, और जितने फायर हो गए हैं यहाँ, तो वो डिप्लीशन ऑफ द आर्म्स एमुनेशन वो भी है। और जो जिस तरह के ईरानियन कह रहे हैं कि हमने क्या नुकसान किया है, अगर उससे आधा या 1/4 नुकसान भी हुआ है, तो दैट अमेरिका कैन नॉट एब्जॉर्ब इट, और जो ईरान है वो तो खैर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको। और उस सिलसिले में अगर देखा जाए तो इसमें चाइना को जो है उसके पीछे पर्दा काफी चीजें मिल रही हैं, रशिया काफी चीजें सप्लाई कर रहा है, और इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है, पहले तो कहा कि चाइना सप्लाई कर रहा है, फिर कहता है नहीं चाइना को मना कर दिया है मैंने कि नहीं करे, जैसे कि उनके मना करने से वो मान जाएंगे। लेकिन चाइना का इसमें बड़ा एडवांटेज है, उनके सर से वो जो ताइवान पे सारी फोर्सेस इकट्ठी की हुई थी अमेरिका ने और जो एकॉस ने, वो कम से कम उनके सर से हटके इस तरफ आ गई है। लेकिन साथ साथ वो चाहता है कि बड़ी मेजर्ड किस्म की वो वाजे रहे कि तारीख ये बताती है कि एम्पायर जैसे इस वक्त अमेरिकन एम्पायर है, जिस तरह एथेंस की तारीख है, रोम की तारीख है, ब्रिटिश की तारीख है, जो स्ट्रक्चर है अगर किसी सुपर पावर का वो कमजोर होना शुरू हो जाए तो सुपर पावर धर्म से गिर पड़ती है। डॉलर इस सारे मामले में, इस जंग के मामले में कमजोर होता जा रहा है, और खलीजी ममालिक जो हैं वो सोच रहे हैं, न सिर्फ सोच रहे हैं, उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है करेंसी स्वैप युआन में। तो डॉलर क्रम्बल हुआ तो फिर यूएस के, वही जो मैं कहता रहता हूं, जो सफर नॉर्थ से साउथ का है वो बहुत तेज हो जाएगा। बड़ी डायनामिक्स चेंज हो रही हैं इस खित्ते में, नजर रखें और इस पे जरा पहरा देते रहें। इस खित्ते में बड़ी सिक्योरिटी डायनामिक्स चेंज हो रही हैं आने वाले महीनों और सालों में, और ये खित्ता जिस तरह आपको नजर आ रहा है इससे मुख्तलिफ नजर आएगा और अच्छा नजर आएगा। पाकिस्तान की ज्योग्राफी की वजह से भी पाकिस्तान को एक अच्छा इसमें एक मंजरनामा मिलेगा। आपने कहा कि ज़ाहिर है इनकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसके हवाले से बड़ी डिटेल बात भी हुई, लेकिन हम यहाँ पर ज़रा माशी तौर पर भी हालात को देखें, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका, चाइना, ये बड़े बड़े जो ममालिक हैं इनके पास बड़े ज़खायर हैं तेल के, तो ये बड़े आराम से कुछ अरसा तो निकाल सकते हैं कि ज़रा हम देखें, वेट एंड वॉच। बट आपके ख्याल में क्या ये भी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है और अमेरिका के लिए भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है?
ये अमेरिका जो somewhat to some extent is safe from oil crisis? चाइना के पास तो 120 दिन का, बल्कि अब तो ज्यादा उन्होंने ज़खायर कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका की बड़ी हालत पतली है इसमें। जो उनके पास 174 दिन के ज़खायर थे, उसमें रॉबर्ट पेप जो कि बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, और लैरी जॉनसन जो कि CIA के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया और सियाको सबाक के साथ बता दिया कि 174 में से अब सिर्फ उनके पास कोई 2 हफ्ते का या 2.5 हफ्ते का ज़खीरा रह गया है। तो लिहाजा उनमें बड़ी बेचैनी फैली हुई है। देखिए कितनी तेजी से वहाँ इसमें प्राइस बढ़ी है उनकी, और अभी जाके जब ये 2 दिन से जंग रुकी है तो $5 $5.5 कमी दोबारा वापस हुई है, और ये थोड़ी सी उम्मीद आज दोबारा शुरू हुई तो ये ऑयल वहीं आना शुरू हो जाएगा। और हरमुज़ को खुलवाने की जो इतनी बेचैनी है पूरी दुनिया को है, लेकिन अमेरिका को भी, कि अमेरिका के रिजर्व, क्योंकि अमेरिका ने अपने रिजर्व को इसलिए ज़्यादा, इलेक्शन आ रहे हैं, रिजर्व को निकालना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा महंगा ना हो गैसोलीन। अगर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता गैसोलीन तो वहाँ मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ तो लोग सड़कों पे निकल आते हैं। उसी चीज़ से बचने के लिए उन्होंने अपने रिजर्व, जिस तरह यहाँ अम्युनिशन का रिजर्व फूंक दिया, उसी तरीके से वहाँ अपने गैसोलीन का रिजर्व फूंक दिया, और जिसकी वजह से भी मुझे उम्मीद हो गई है, और मैं इसमें बड़ी कभी उम्मीद रखता हूँ कि ये मामला फिर ऊँट की सी करवट बैठने वाला है। लेकिन जो दूसरा वहाँ अमेरिका है, वो अपनी सुपर पावर के ज़ौम होने का, उसमें वो शरारत करता रहेगा। आपने देख लें कि इजराइल भी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, उसको पता है कि उसके पास भी पैट्रियट और आयरन डोम का जो मामला है बड़ा पतला है। और पिछली दफ़ा के धुएं अभी तक निकल रहे हैं वो डिमोना से और तल अवीव से, तो उसने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन धमकी देता देता चला गया। आपने बात की थी उनके माइक वार्ड्स जो कि UN में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के, उन्होंने ये बात दुरुस्त है कि कहा कि वो डिप्लोमेसी को रास्ता देना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा, सदर ट्रंप के बयानात को रिपीट किया कि डोनाल्ड ट्रंप इज लॉक्ड एंड लोडेड। अगर ईरान ना माना तो फिर हम दोबारा चढ़ाई कर देंगे। तो ये सुपर पावर्स की एक नफ्सियात होती है, उस नफ्सियात के तहत ये हचकोले एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें आइंदा भी करना चाहिए। लेकिन ये अब अफोर्डेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो गई है अमेरिका की, कि इसको प्रोलॉन्ग तरीके से प्लानिंग ही नहीं थी ना। ये सारे वहां के कह रहे हैं, जितने भी नाकदीन हैं और जितने भी तबसरा निगार हैं, सारे कह रहे हैं कि ये प्लानिंग पूरी नहीं की थी, और 5-8 दिन की जो हम बात करते रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जंग में आए और अब वो इस दलदल में फंस गए हैं। इधर से अब उनको निकलना जो है, अपनी अजीमत बचाकर निकलना थोड़ी मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क और बाकी मीडिएटर्स उनको रास्ता दे रहे हैं, ये रास्ता मिल जाएगा तो इस खित्ते में थोड़ा अमन आ जाएगा। लेकिन इस खित्ते की नफ्सियात चेंज होगी, और नफ्सियात से इस खित्ते के हालात चेंज होंगे, और ये जो ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग है सिक्योरिटी की, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैंने मंजरनामे की बात की है, आपका टाइम कम रह गया है, अगर हो तो मैं आपको बता दूं कि क्या मंजरनामा होने वाला है, सिक्योरिटी पैराडाइम किस तरह चेंज होने वाला है इस क्विकली। अगर आप जमील साहब इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें तो हम इसी कमेंट के ऊपर अपनी कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन आप बता दें कि मंजरनामा किस तरह से चेंज होने वाला है इस खित्ते का। जो कैलकुलस चेंज हो रही है, जो मैंने आपको बयानात दिए, और जिसमें सुपर पावर का जिक्र किया, जिसमें डॉलर का जिक्र किया, जिसमें अमेरिका की इस अजीमत का जिक्र किया, जिसमें नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर में हमारे खलीजी ममालिक आ गए, जिसमें कुछ खलीजी ममालिक ने पहले ही इंदिया दे दिया है कि इन बेसिस को हमारी जान छुड़ाएं, क्योंकि इन बेसिस की वजह से बजाय हमारे प्रोटेक्शन के ये हमारे लिए खतरा बन गए हैं। तो अब इस कैलकुलेशन में ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान तो है ही है, इसमें शामिल हो जाएगा, और ये बेसिस आपको अगले चंद सालों में निमटते नजर आएंगे। ये बेसिस अब अमेरिका में खुद आवाजें उठ रही हैं, ये बेसिस अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका इस खित्ते में, लिहाजा ये कैलकुलस चेंज होगी। ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का सफर मैंने जैसे कहा कि कितना तेजी से ये सफर तय होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील हमारे साथ थे, और बड़ी खबरें भी आज उन्होंने अपने तज़किये में दी है कि क्या हालात व वाक़यात वो रीड कर रहे हैं, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन एनालिसिस है वो क्या हमें बता रहा है।